सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर सीएसएस का आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और गाइज मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीएसएस कोर्स। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर में, तो आज हम लोग सीखेंगे गाइज इस लेक्चर में सीएसएस में कि हम टोपोग्राफी कैसे कर सकते हैं। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। गाइज टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि जितनी भी स्टाइलिंग से, जितनी भी चेंजेस, जितनी भी जो भी इफेक्ट्स हम फॉन्ट स्टाइलिंग के ऊपर लगाते हैं, यानी कि फॉन्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम जो भी इफेक्ट्स लगाते हैं, जो भी स्टाइल करते हैं, उसको कंबाइंडली हम बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को टोपोग्राफी। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि टोपोग्राफी में सीधे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराता है और क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। सो चलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर गाइस। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. Okay guys, so हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं अपना स्पीड रेट कम कर लेता हूँ। Rate 45. Rate 40. Rate distance. Select volume 90. Volume 1. Volume 100. ओके एंड वॉल्यूम हमारा हाइड कर दिया मैंने। ओके नाउ ओके गाइस, सो नाउ let's open this PC here. Run dialog. D colon. Local disk left parent. D colon. Yahoo coding. Items view list. Then C selected. C items view list. और Select. यहाँ पे हम बनाते हैं अपना CSS lecture finally 4। New folder edit. E C T R E lecture. Spit 4. Lecture 444. और चलिए इसको ओपन करते हैं VS Code में as usual। Cut alt. T copy delete pop open pin to pin copy proper one drop open in terminal open with show more options open with code alt I11 of 12. Items view list. Lecture 44 Visual Studio Code window document. तो ये मैंने ओपन कर दिया। Application chat input left parent agent right parent. चलिए उस PC विंडो को क्लोज कर देते CSS हैं dash CSS dash lecture 4 dash Visual Studio Code window. और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना फाइल एक्सप्लोरर। Files Explorer preview. यहाँ पे दो फाइल बना लेते हैं as usual, index और CSS। Menu. New file 1 of 13. Files Explorer preview INDE index HTML L comma M comma L comma M T H T index.html. Files Explorer 3 main landmark index.html. यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट लगा देते हैं। Bang suggest list level 1 index.html editor as autocomplete multi-line selected device dash width. Less title greater document less title greater document. यहाँ पे Document लिखते selected. हैं C S S S space T O P O G R H Y. टोपोग्राफी। Topography. Less meta name line feed. यहाँ पे लिंक करने के लिए एक जगह छोड़ देते हैं। Files Explorer. एक दूसरी फाइल ओपन कर लेते Explorer हैं। section colon lecture 4 new file button. Files Explorer preview type file name STYLE style sheet error colon C S S index.a main landmark style sheet.css editor as autocomplete multi और यहाँ पे मैं list index.h main इसको लिंक कर देता हूँ एक्सटर्नल फाइल। L I suggest list lead property level 1 link property level index.html editor as autocomplete space suggest list style sheet.css 5 index.ht less title less link rel equals quote style sheet quote ref equals quote style sheet.css quote greater. ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, और चलिए less body greater blank एक बॉडी मान लेते हैं। यहाँ पे एक वेलकम मैसेज H1 level 1 H1 prop index.html editor as autocomplete multi-line less T O index.ht O T T O index.t O G R H Y graphies I N C S S suggest list CSS index.line feed P suggest list index.html editor I N T A S space C S E P T space W space W I L L L D E del property level S I G N space T E space T space index I N D I F E R T different select D I F F E R E N T clearance space W A S is dot let's learn this concept we will design the font in different ways. गाइस आप लोग बताइएगा ये कौन सा मेरा एरर है या हैबिट है, आई डोंट नो। बट जैसी मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो होती है मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ। ये क्या आप लोग के साथ भी होता है, मुझे बताइएगा जरूर। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ना डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। चलिए मैं काम करता हूँ। सबसे सबसे पहले गाइस सीखते हैं कि हम फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि यार लक्ष्मण भाई आपने तो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी बता रखी है, फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं, तो फिर क्यों सीखना। गाइस फ्लो मेंटेन करना पड़ता है ना। कोई मान लो डायरेक्टली इस वीडियो देख रहा हो तो अच्छा। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक आईडी लगा देता हूँ, लगाता हूँ बोल्ड फॉन्ट करके और यहाँ पे लिखता हूँ सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इस आईडी को मैं कॉल कर लेता हूँ। तो
D bold dash LOT font left brace. ठीक है, Number bold dash font left brace warning blank. और यहाँ पे हम अपनी स्टाइलिंग लिखते हैं, सॉरी List index to main बोल्ड नहीं, हमें लार्ज करना line है। feed greater P dot left font bold A M A bold font bold selected L A R index G E R ger space Larger. less P is equals quote less P is equals quote bold dash D L O D L R E level less P is equals quote large dash font quote greater I am a larger font dot less slash और यहाँ list पे style main आईडी को करेक्ट कर देते हैं। number D warning bold selected L A R select G E लार्ज हम इसके बोल्ड हम इसके बाद सीखेंगे, ठीक है। blank number large dash font left brace warning तो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया, उसके ऊपर एक आईडी लगाई, आईडी का नाम रखा मैंने लार्ज फॉन्ट, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा आई एम अ लार्जर फॉन्ट, और सीएसएस फाइल में आ करके मैंने उसी आईडी को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब इसके अंदर हम सीखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, टोपोग्राफी से रिलेटेड हमारे पास 3 मेन कैटेगरी के प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है गाइस हमारे पास फॉन्ट प्रॉपर्टी, दूसरा आता है गाइस हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसके सब प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब मेन प्रॉपर्टी और सब प्रॉपर्टी क्या होता है मैं नोट पर run समझा। dialog L T E P A D desktop list shortcut to desk notepad index चलिए, blank जब क्या कहते हैं हमें कोई हमारे पास कोई मेन प्रॉपर्टी होती है तो हम उसका नाम लिखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी P R O P R T Y कोलन property code space V L U E वैल्यू, जैसे कलर कोलन वैल्यू। बट एक प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल सब प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉन्ट है तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, है ना, ये अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या करते हैं, P जो उसकी सब प्रॉपर्टीज होती है ना उसको डैश से हम एक्सेस कर देते हैं, जैसे R प्रॉपर्टी O P E R T Y colon डैश dash L U B सब P R O P E R T Y प्रॉपर्टी, property dash sub property colon value इस तरीके से। और एक प्रॉपर्टी के अंदर कई सारे सब प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ठीक है। style sheet dot अब मैंने ये स्टोरी क्यों समझाई आप लोगों को, मैंने ये स्टोरी आप लोगों को ये समझाई क्योंकि जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग 2-3 लेट्स से हमारे पास सब प्रॉपर्टीज है जो हम सीखेंगे। तो फॉन्ट line की जो feed सबसे पहली प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं सब line प्रॉपर्टी feed फॉन्ट कैटेगरी के अंदर, वो है हमारे पास फॉन्ट का साइज। number log blank line feed फॉन्ट L N T suggest list font property level 1 अब जैसे ही मैंने फॉन्ट लिखा तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशन आ गए VS कोड में। जो सबसे ऊपर पे है वो है फॉन्ट प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इसके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, font dash family property level 1 फॉन्ट डैश फैमिली, उसके बाद font dash size property level 1 फॉन्ट डैश साइज। चलिए हम सबसे पहले इसको यूज करते हैं। suggest list large value level 1 error तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है जो कि होती है लार्ज, larger value level 1 लार्जर, medium value level 1 मीडियम, small value level 1 स्मॉल, smaller value level 1 स्मॉलर, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे पास अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। तो या तो आप इन प्री डिफाइंड वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, या तो इसके अलावा आप जो है वो खुद से वैल्यूज टाइप भी कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट वेज। या तो आप पिक्सेल्स के फॉर्म में राइट कर लो, स्पेसिफाई कर लो, या तो आप पॉइंट के फॉर्म में, जैसे हमारा एनवीडिया जो है ना वो पॉइंट के फॉर्म में अनाउंस करता है, जैसे 12 पॉइंट, 13 पॉइंट। MS वर्ड में भी हम ऐसे ही करते हैं, पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं तो कैसे, style देखिए sheet dot ये तो आपको पता है कि जब space भी semi आप error वैल्यू स्पेसिफाई करते हो इन इन द पिक्सल यूनिट्स, ठीक है, इन पिक्सल यूनिट में जब भी आपको कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपना जो भी क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 1 5 और यहाँ पे लिखते हैं px। px level 1 15 px style sheet dot right brace font dash size colon 15 px semi इस तरीके से आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन list करता index to main हूँ index.html menu को, comments to open with live server alt plus L index dot html editor as autocomplete multi-line less p is equals quote large dash font css topography dash Google Chrome window css topography clickable heading level ये देखिए I am a larger font I space a m Times New Roman 11.5 pt black on white line तो यहाँ पे आ रहा है 11.5 pt, ठीक है। तो ये इस तरीके से index dot h बनता index है, जबकि नॉर्मली 12 पॉइंट होता है। पर अगर list style आपको sheet main पॉइंट में वैल्यू स्पेसिफाई करनी line है feed semi तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली 12 पॉइंट होता है, अगर आपको 15 पॉइंट यूज करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है 15, x p 5 1 5 px semi यहाँ पे px की जगह पे xp आपको लिखना है pt। pt level 1 15 pt unit style sheet dot css सेव करते हैं एंड css to सी। I am a larger I space a m Times New Roman 11.5 pt black on अच्छा रिफ्रेश कर, जब तक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे एनवीडिया का चेंज नहीं होगा। css to clickable space a m Times New Roman 15 pt black on यहाँ पे 15 pt गाइस आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है right ना? race font dash ये इस तरीके से। एक और तरीका है रैम।
मतलब REM में भी आप वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं जिसमें आप वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं, पिक्सेल्स, पॉइंट और रैम। अब रैम, पिक्सल और क्या कहते हैं पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग गाइस खुद से सर्च कर लीजिए, आपके रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। बट ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब मोस्ट रिलायबल मेथड तो ये है कि आप वैल्यूज को जो है वो पॉइंट में स्पेसिफाई करो, क्योंकि पॉइंट इज लाइक अ फिक्स वैल्यू है ना, मतलब सॉरी डायनामिक वैल्यू बेसिकली एडजस्ट हो जाता है। बट जैसे पिक्सेल्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं कि लाइक आपको फिर मैनेज करना पड़ता है अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। सो ये है, तो आप रैम में यूज करो या आप पॉइंट में यूज कर सकते हैं, डेट विल बी बेटर। Right race. Right race. Blank. ओके, चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। दूसरा जो है गाइस वो हमारे पास है फॉन्ट फैमिली का आता है। List index.h main. तो Less slash body greater less p equals quote large dash line feed. अब मैं यहाँ पे एक और पी P बनाता हूँ। suggest list p property left index.h greater less. Greater p greater space. यहाँ पे I p आईडी suggest list level 1 index.html. और यहाँ पे F T N T फॉन्ट dash index a m I l y फैमिली, फॉन्ट फैमिली नाम से मैंने एक आईडी बना दी greater less. एंड यहाँ पे I space a space आई एम a space I no f suggest list e r e n t errand space index c a t e such g r y or e o f level space o t t bang less p equals quote font dash family quote greater I am a different category of font less slash p greater सेव करता हूँ। list style she main landmark अब यहाँ पे देखिए blank मैं उसको गेट करता हूँ आईडी को number error और o n t font dash f a m I l y family quote left brace number font dash family left brace warning blank अब यहाँ पे मुझे फॉन्ट की फैमिली सेट करनी है, तो अगेन आई विल टाइप फॉन्ट o t suggest list font property level font dash family property level 1 और यहाँ पे मुझे पहली प्रॉपर्टी मिल गई फॉन्ट फैमिली। मैं इसको एंटर करता हूँ। suggest list courier monospace value level 1 error तो यहाँ पे देखिए गाइस मुझे सबसे पहली जो सजेशन मिली वो करियर मिले। लेट से मैंने यहाँ पे करियर लिख दिया। stylesheet.css editor at e semi अब पता है गाइस मैं मल्टीपल फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे ये लिखा उसके बाद स्पेस करके space और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूंगा तो मुझे सजेशंस मिल जाएंगे। लेट से space suggest list courier new Franklin Gothic medium Eric Bill Sands MT Lucia Sands Bill Sands stylesheet.f semi तो उसके बाद space वापस से स्पेस करके space suggest list courier new लेट से मैं टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ, तो टी t times new Roman times serif value t stylesheet.cs right race font dash family colon courier monospace Bill Sands MT Calibri trebuchet ms apostrophe Sands dash serif times new Roman times serif semi इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर मैं CSS पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँ CSS topography I am a different guy space am times new Roman 12 pt black on white line left तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन I am a different category of आ font रहा है। space am times new Roman 12 pt black on white line left ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। stylesheet. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पे फैमिली स्पेसिफाई कर रखे हैं स्पेस कर करके, तो जो भी फॉन्ट अवेलेबल होगा, मतलब जिस भी स्टाइलिंग में ब्राउजर फॉन्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स अप्लाई कर देते Right हैं। race. 2-3 ऑप्शन यहाँ पर रख देते Right हैं। race. Blank. अच्छा, तो List एक index काम study. करते हैं, अब एक और चीज सीखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे कि अगर आपको फॉन्ट को Less slash body greater. Less p equals line feed. बोल्ड बोल्ड करना है तो कैसे कर P सकते suggest list. P property index dot space. ID list circle index dot htd I space greater space ID suggest list level 1 id value index dot h हैं? लेट्स मैं लिखता हूँ dol index d dash f o t बोल्ड फॉन्ट। greater less I am space f o level 1 font proper font index dot html editor d o l d d space t search bang and less p equals quote bold dash font quote greater I am a bold font less slash p सेव करता हूँ। list stylish main lamp अब यहाँ पे देखिए blank गेट करता हूँ आईडी को number f t font dash b o l d bold space bold select dash select font selected b o l d bold dash f t font left brace number bold dash font left brace blank अब यहाँ पे मैं अगर फॉन्ट टाइप करता हूँ f o n t suggest list font property font dash family proper font dash size proper font dash weight property level 1 यहाँ पे फॉन्ट डैश वेट नाम से प्रॉपर्टी है। एंटर suggest list 100 value level 1 error तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही है 100 200 value level 1 200 300 value level 1 300 400 value level 1 400 500 value level 1 500 600 700 800 value 900 value level 1 900 तक वैल्यू है। उसके बाद bold value level 1 बोल्ड bolder value level 1 बोल्डर lighter value level 1 लाइटर normal value level 1 तो इस तरीके से। count left parent right parent इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। देखिए normal value lighter value level 1 लाइटर का मतलब ये है कि नॉर्मल जो फॉन्ट होते हैं उससे थोड़ा सा बोल्ड, बिल्कुल हल्का सा। bolder value level 1 बोल्डर मतलब उससे भी थोड़ा सा बोल्ड, bold value level 1 बोल्ड यानी कि प्रॉपर बोल्ड। 900 value level 1 और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज शुरू हो जाती हैं जैसे 100 200 300 400। तो ये इस तरीके से मतलब कितने 100 टाइम्स आप बोल्ड करना चाहते हो। ठीक है, bold value level 1
चलिए मैं अभी बोल्ड का यूज करता हूँ, Stylesheet.cs. सेव करता हूँ, CSS. CSS. रिफ्रेश करता हूँ, CSS. तो देखिए I am a bold. I. Space. AM. Times New Roman 12 PT black on white bold align left. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा एनवीडिया ना बोल्ड के डिफरेंस को नहीं कर सकता डिटेक्ट, ठीक है। Style. तो क्या है बेसिकली यहाँ पे Right race. Font dash weight colon. Bold semi. बोल्ड यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि जैसे अगर आपको कोई टाइटल डिस्प्ले करना है, वेलकम मैसेज डिस्प्ले करना है, बैनर जो एरिया होता है जहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, बड़ा सा पोस्टर टाइप का कुछ पोस्टर वोस्टर टाइप का कुछ डिजाइन करना है, तो उसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं 900 वाला जो पर्स वैल्यू है ना। ऐसे नॉर्मली हम बोल्ड बोल्ड यूज Right. करते Right race. हैं इस Blank. तरीके। अच्छा, ये तो हो गया गाइस फॉन्ट। अच्छा, फॉन्ट के लिए कुछ Line और भी feed. है क्या? चलिए मैं Blank. Right race. देख ही Font लेता dash हूँ line आपको। feed. जैसे FON. Suggest list. Flex dash direction. Style sheet. Font selected. FONT. Suggest list. Font dash fam. Font dash size. Font dash weight. Font dash style. Property level 1. फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, ये भी आपको Style sheet. समझाना है, ठीक Font selected. Space. Unselect. है। Right rate. Blank. Line feed. Space. Line feed. ठीक है। Right race. Font dash weight colon. Right blank. Blank. तो Right race. Blank. Blank. अगर आपको फॉन्ट को Blank. इटालिक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे List. Index main. मैं अगर एक और पैराग्राफ Less बनाऊं, slash dot less p equals line feed. P suggest list. Index.html editor as autocomplete. Greater. Space. I. D level. Index.html editor as autocomplete multi. I suggest list. T initial dash scale text level 1. I. Index.html quote equals quote 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 quote. I suggest list. I text level 1. T A L I C C dash L F E. Greater. Less. I A M list space. I T A C C space O F T. T bang less slash less p equals quote italic dash font quote greater I am italic font less slash और इसी आईडी पे list स्टाइलिंग style करता make हूँ, अब यहाँ पे आके blank तो हैश, number I C italic O F T font left brace number italic dash font left brace blank और यहाँ पे line आ feed करके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, O T suggest list font dash style property level 1 एंटर प्रेस करता हूँ, I suggest list italic value level 1 error तो यहाँ पे इटालिक एक वैल्यू आपको मिलती है इस प्रॉपर्टी के अंदर, normal value level 1 नॉर्मल मिलता है, oblique value level 1 ऑब्लिक मिलता है। count left parent right parent if left parent inherit value initial value unset value var left parent right italic value level 1 तो यहाँ पे इतना ही मिलता है, ठीक है। तो लेट्स से इटालिक यहाँ पे style sheet लिखता dot हूँ, सेव करता हूँ, CSS to रिफ्रेश करता हूँ, CSS to ये देखिए, I am italic I space A M Times New Roman 12 PT black on white italic align left तो यहाँ पे इटालिक जो है हो गया। style sheet dot तो देखिए जो हमने टैग सीखे थे HTML में, लेस आई ग्रेटर के हेल्प से पता नहीं कितने कितने टैग सीखे थे, है ना, वो सारे के सारे कंट्रोल हमें CSS में मिल जाते हैं, उल्टा ज्यादा कंट्रोल हमें मिलता है। right race blank और कोई फॉन्ट की स्टाइलिंग बचती है blank क्या? right race font dash line feed लेट्स सी, O T suggest list font dash weight font dash style font dash display property level 1 फॉन्ट डिस्प्ले। font dash variant property font dash display अच्छा, फॉन्ट डिस्प्ले में क्या क्या आता suggest है? list auto value level 1 block value level 1 ब्लॉक, fallback value level optional value left swap value left out left parent right ठीक है, ये style इतना sheet dot इंपॉर्टेंट नहीं है। blank right race font dash style colon italic semi line feed O N suggest list font colon font dash style font property font dash display font dash variant property level 1 I suggest list normal value small dash caps value count left parent right parent if left parent right style sheet ठीक है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं right है, rate font वी कैन स्किप इट, ठीक है। right rate font dash style colon italic semi नाउ blank आते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए टाइम लिमिटेड है ना, इसलिए मैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज को कवर नहीं कर blank सकता, राइट, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उनको list कवर कर index लेते dot हैं। तो less slash body greater less p equals line feed यहाँ पे P suggest पैराग्राफ list index dot html greater P greater space I T level 1 id index dot और h यहाँ पे quote आइए चलिए देखते हैं कि हम टेक्स्ट को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। quote जो हमारा फॉन्ट है, टेक्स्ट है, उसको हम अलाइन कैसे कर सकते हैं। quote तो जैसे कि अगर मुझे अलाइन करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C E N T E R E D red dash T E X T greater less I space M space A space C E N T R E D space index T E X T index dot A I circle N E D ned space T E X T टेक्स्ट, if aligned less P equals quote center dash text quote greater I am a center aligned text less slash P सेव करता हूँ। list style sheet domain blank अब यहाँ पे number वो ऑडियो कॉल करता error हूँ, C E N T E R E D centered A L I N error align selected T E X T aligned left brace number center dash text left brace warning blank और यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए फॉन्ट की हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ठीक है, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो गई, सारी की सारी खत्म हो गई। तो अब आते हैं हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब फॉन्ट और टेक्स्ट दोनों अलग अलग चीज होती है ना। जो फॉन्ट होता है यानी कि जो आपने लिखा है, जो आपके लेटर्स होते हैं वो होते हैं फॉन्ट। टेक्स्ट यानी कि जो कंटेन कर रहा है ना, जो जो टेक्स्ट को कंटेन कर रहे हैं बेसिकली। तो अब टेक्स्ट से रिलेटेड right जो brace प्रॉपर्टीज blank है वो line feed कैसे है, जैसे मैंने अगर तो टेक्स्ट T E X T
Text dash decoration. Text dash align. Property level 1. सबसे पहला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। तो सिंपल बात है, एज नेम सजेस्ट ये अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ Suggest list. Center value level 1. जो Error. वैल्यूज मिलते हैं उसमें सबसे पहला है सेंटर, End value level 1. एंड यानी कि राइट, Justify value level 1. जस्टिफाई यानी कि जस्टिफाई जो आप यूज ही करते हो ना, कि बिगिनिंग के सारे लाइन के और एंडिंग के सारे लाइन के जो स्पेसिंग है वो हो जाएंगे, मतलब मैनेज हो जाएंगे। Left value level 1. लेफ्ट Right value level 1. राइट Start value level 1. स्टार्ट, Help left parent right parent. Function ये level 1. सारे के सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो Start right left. Justify. End value center value level 1. सेंटर अगर मैं करता हूँ, Stylesheet.c. सेव करता हूँ, CSS topography dash Google Chrome. CSS topography. ये देखिए I am a center line. Space AM. Times New Roman 12 PT black on white align center. यहाँ पे अलाइन सेंटर। Stylesheet.c. बाकी आप स्टार्ट और एंड का भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट और एंड में क्या होगा ना, कि जो टेक्स्ट है अगर आप स्टार्ट रखोगे तो जैसे ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे टॉप के साइड ये हो जाएगा अलाइन, और अगर एंड रखोगे तो नीचे के साइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। Right race. Text dash align right race. ठीक है, Blank. अगला जो है वो है कि List अगर index dot less slash body less p equals quote line feed. यहाँ पे लिखता P हूँ suggest list P property level 1 index greater less greater P greater space I D level 1 id value index dot quote और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से U N index dot S E unselected U N D E L I N E derivatives dash T E X T T X E T dash X D X dash X less P equals quote underline dash text quote line great P slash greater less I am space circle U N index D E R L I N E Derlines T E X T T dash less P equals quote underline dash text quote greater I am underline text less slash सेव करता हूँ। list अब अगर मैं इसको आईडी को कॉल करूँ 3 U N D E R L I N E D 3 underline T E T space E error E blank error X error T T blank space left race 3 underline dash text left race 3 U error 3 N D E R L I N E warning dash T warning E X T space warning T X E T dash D warning blank underline dash text left race warning U warning number यहाँ पे हैश का सिंबल कर warning दीजिए। blank number underline dash text left race blank अब line feed यहाँ पे मैं अगर लिखूँ टेक्स्ट T E suggest list text dash emphasis colon none semi property level 1 text dash align property level 1 टेक्स्ट अलाइन पहले मिला था, text dash decoration property level अब 1 डेकोरेशन पे आते हैं। इस पे एंटर करूंगा, suggest list dash value level 1 error डैश्ड, dotted value level 1 डॉटेड, double value level 1 डबल। बेसिकली ये जो टेक्स्ट का जो अंडरलाइन होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम में आता है। टेक्स्ट का जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, dotted value level 1 डॉटेड यानी कि टेक्स्ट के नीचे डॉटेड अंडरलाइन आएगा, dashed value level 1 डैश्ड यानी कि डैश्ड आएगा, dotted double value level 1 डबल यानी कि डबल अंडरलाइन आएगा, line dash through value level 1 लाइन डैश थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्राइक थ्रू करने का काम में आता है, यानी कि किसी टेक्स्ट को अगर कट करना है ना, या जैसे हम HTML में डेल टैग का यूज कर रहे थे डिलीटेड शो करने के लिए, तो उस चीज के लिए। बट रिकमेंडेड है कि जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करो तो आप CSS के थ्रू, लाइन थ्रू या स्ट्राइक थ्रू ना यूज करें, बल्कि डेल टैग का यूज करें। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि विजुअली तो आपको मिल जाएगा, पर क्या कहते हैं, एनवीडिया के थ्रू आपको वो अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा डिलीटेड टेक्स्ट करके। none value level 1 और यहाँ पे नन अगर कहीं पे ऑनलाइन लगा हुआ है तो हटाने के लिए होता है। ये बहुत ही काम आता है अगर आप किसी लिंक को बटन के स्टाइल में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो लिंक के ऊपर हमें पता है बाय डिफॉल्ट अनलाइन होता है, तो उसको हटाने के काम में आता है। और नेविगेशन बार में भी जब लिंक्स बनाते हैं, टैब बनाते हैं, तो होते वो लिंक्स है पर डिस्प्ले एज अ टैब होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत काम में आता है। overline value level 1 ओवरलाइन मतलब लाइन के ऊपर से ये लाइन जाएगी, मतलब अनलाइन तो नीचे होता है टेक्स्ट के नीचे, है ना, ये ऊपर होगा। solid value level 1 सॉलिड, तो यहाँ पे अगर मैं सॉलिड कर दूं, stylesheet.css edit सेव कर दूं, CSS topography dash Google Chrome window CSS topography I am underline text I space AM Times New Roman 12 PT black on white line left stylesheet dot ओके line feed semi solid selected U unselected suggest list underline value level हाँ stylesheet अनलाइन सेव करता हूँ। CSS clickable I am underline I space AM Times New Roman 12 PT black on white underline the line left यहाँ पे अंडरलाइन करके आ गया है। stylesheet dot right race text dash decoration colon underline semi और underline space colon N colon dash suggest list text dash decoration dash line property level 1 warning text dash decoration dash color property level 1 तो अब यहाँ पे क्या है, सब प्रॉपर्टी की भी सब प्रॉपर्टीज है, मतलब टेक्स्ट डैश डेकोरेशन से तो आप ये आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, बट इसके अलावा आप टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश करके आप text dash decoration dash line property level 1 लाइन
इसके हेल्प से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि जो ऑनलाइन है वो कौन से टाइप की होनी चाहिए, कि वो डैश होनी चाहिए, डॉट होनी चाहिए, Text dash decoration dash color property level 1. कलर कौन से टाइप का होना चाहिए, Text dash decoration dash style property level 1. ठीक है, स्टाइल कैसे होनी चाहिए, Text dash decoration dash thickness property level 1. थिकनेस कितनी होनी चाहिए, बहुत कुछ है गाइस। सीएसएस में आपको इतना कंट्रोल मिलता है, यू नेवर कैन इमेजिन। Text dash decoration dash skip dash int property level 1. Text dash decoration dash inset property level. Text dash decoration dash skip property level 1. Style sheet dot बहुत कुछ है, dash ठीक है। तो ऐसे line feed एक में कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। T E X T. Text dash decoration property level 1. Suggest list dash style colon n colon dash suggest list text dash decoration dash color property level 1. Style sheet dot CSS editor as कलर करता हूँ और यहाँ पे रेड, R E right race text dash decoration dash glory colon semi line feed semi error line feed semi error colon selected glory selected CO suggest list text dash decoration dash color property left suggest style semi error space semi error R suggest list Rebecca purple number 6 red number FF0 style sheet right text dash decoration dash color colon red semi रेड हो गया। अब CSS एनवीडिया तो नहीं हालांकि अनाउंस करेगा, वो CSS ऑलरेडी बोलेगा, बट clickable I space AM Times New Roman 12 PT black on white underline the line left पर क्या कहते हैं यहाँ पे वो विजुअल्स में आपको दिख रहा होगा। मैं अगर थोड़ा जूम कर दूँ zoom colon 500% alert यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। zoom colon 300% alert style ओके, sheet dot CS style तो दिस इज, अब right race और कौन सी text dash प्रॉपर्टी बची decoration dash है line feed टेक्स्ट के अंदर। TE suggest list text dash emphasis colon none semi property level style sheet dot CSS editor as autocomplete multi-line selected none right race selection room text dash line semi space space semi error space suggest list count left if left parent and air initial unset var left count left if left parent style sheet dot CS right race text dash emphasis colon semi error T line feed semi space semi error line feed colon emphasis selected dash selected T until space text dash align text dash decoration text dash transform property docs colon controls हाँ, capital ये बहुत ही इंटरेस्टिंग style है। sheet dot C right race text T T अच्छा, सबसे text select इम्पोर्टेंट ये बताओ line क्या है, feed right race अगर VS कोड आप यूज कर रहे हो तो आपको हर एक प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन भी VS कोड ला के देता right है। race text तो dash right race blank अगर मैं यहाँ पे ही जाऊँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ, list index to main बड़ा मजा आएगा, एक चीज करता हूँ आप लोगों के लिए। less slash body greater less p equals line feed अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट्स से लेबल, L B level 1 label property docs colon index dot html editor as autocomplete multi-line less label for equals quote और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से N नेम, E index dot 8 less greater quote greater less और मैं लिखूँ E N E space enter एंटर, selected E less N index E yours N N E colon line feed और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से R br suggest list level 1 index dot तो यहाँ पे लिखता हूँ I N input property docs colon index dot html editor as auto T selection E टेक्स्ट X T quote greater और यहाँ space पे ID suggest list level 1 index dot H N E नेम name कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको CSS topography रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, clickable edit enter your name colon I am underlined text enter your name colon edit blank CSS topography dash Google Chrome CSS अब topography लेट्स blank से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर लक्ष्मण टाइप करूँ A X A N तो A X M A अभी तो मैं जैसे टाइप करूँ बिल्कुल वैसे आ रहा है, blank N बट व्हाट इफ गाइस, अगर मैं ऐसा कुछ चाहूँ कि एक ऐसा इनपुट फील्ड बनाओ जहाँ पे जो नेम है वो आप चाहे स्मॉल में टाइप करो चाहे कैपिटल में टाइप करो, बट डिस्प्ले कैपिटल में होना चाहिए, बिकॉज वी नो कि जो नेम्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में डिस्प्ले होते हैं। तो index dot 8 ये काम कैसे कर सकते हैं, list आइए style बड़ा sheet dot मजा आएगा करने में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ blank number नंबर, name space left race number name left race blank यहाँ पे लिखूंगा सिंपली T E suggest list text dash emphasis colon text dash decoration proper text dash transform property dot suggest list capitalized value docs colon पहले तो यहाँ पे है कैपिटलाइज, यानी कि इससे कि कैपिटल हो जाएंगे सारे के सारे लेटर, lowercase value docs colon लोअर केस यानी कि सारे के सारे लेटर लोअर हो जाएंगे, none value docs colon no effects नन यानी कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, uppercase value docs colon अपर केस यानी कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। एक सेकेंड, बट कैपिटलाइज और अपर केस का क्या मतलब है? कैपिटलाइज में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और अपर केस में सिर्फ सारा का सारा लेटर अपर हो जाएगा। count left parent right parent function docs colon if left parent inherit initial unset value var left parent capitalized value docs colon puts lowercase none value low capitalized value docs colon puts the first typographic letter unit of each word in title case backslash left bracket baseline icon right bracket left ओ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ना कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर। lowercase value docs colon none value docs uppercase value अपर केस तो मैं अपर केस लिखता none हूँ, uppercase value docs colon puts all letters in uppercase backslash left bracket base style sheet dot cs सेव करता हूँ। CSS topography अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग होगा, CSS topography ये देखिए, edit enter your name colon edit A X M ये देखिए, ये देखिए, मैं ये देखिए मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, caps lock on caps lock off ये ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे L A X
ठीक है, आप लोगों ने खुद देखा कि मैंने एकदम स्मॉल लेटर में टाइप किया है, बट सी, अगर मैं होम प्रेस करके अगर मैं पढ़ूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, L A X M A N. कितना अमेजिंग है गाइस। Style sheet dot और अगर मैं आपको एग्जांपल कैपिटलाइज line करूँ, feed semi. C A suggest list capitalized value. Style sheet. तो यहाँ पे देखिए, C CSS topography. CSS topography. Edit. Enter your name colon. Edit land. मैं लिखूँ F A लक्ष्मण, X A N. तो देखिए CSS topography dash. CSS topography dot Laxman. लक्ष्मण, बट लक्ष्मण का L एल कैपिटल है A X M A N blank space और P R A S A D L A X M A N space P R A S A D blank. सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं करेक्ट था बेसिकली उस टाइम पे, वर्ड, हर एक वर्ड का जो है वो लेटर कैपिटल हो जाए, Laxman. तो ये D टाइटल वगैरह unselected. डिस्प्ले करने का काम है, राइट, Style sheet. ये इस तरीके से है। Right race. ये जो प्रॉपर्टी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग Right और भी race. सीखते हैं, तो जैसे कि फॉर List index. एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसके नीचे एक पैराग्राफ Less बनाऊँ, slash body greater. Less input type equals quote tag line feed. लेट्स से P suggest index dot H. मैं आप लिखता Less हूँ, P line greater. Space I D level 1 id index dot html. मैं आप लिखता हूँ Quote. F O T T dash font dash family A C I F G. सिंक करके लिखता हूँ। Blank less P equals quote font dash space and quote greater. Blank. और यहाँ पे लेट से अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिख जैसे Double E index space A E space index dot S O M E E space D U level Y my space E E X T T टेक्स्ट, dot index dot H फिर E यहाँ R unknown index पे बी आर टैग लगा के A O W space A R E Y O U space L level L Q Y S. Guys गाइस, bang question. L how are you all guys? L H L L how selected A O list W space blank how are you all guys? फिर यहाँ पे Blank जैसे D एक R और D R index बी आर टैग लगा के मैं लिखता हूँ double E space बी E space आर L E A R N टी in आर space T O P suggest list O G R A P H Y graphy I N C S S suggest dot index dot HTML list we are learning topography in CSS अब इसको सेव करके CSS पेज को रिफ्रेश करूँ, CSS तो यहाँ पे देखिए, no next edit field no previous edit field clickable heading level enter your name colon edit अब इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो एक बार देखिए, we are some dummy text how are you all guys we are learning topography in CSS we are learning topography in CSS वेल लर्निंग टोपोग्राफी इन सी एस एस ऐसे करके। तो मैं क्या सिखाने वाला हूँ, index dot in बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो है एनवीडीए से ये रीडेबल नहीं है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट ओनली, ठीक है। list style sheet तो क्या है, right race अगर blank मैं इसको पहले तो गेट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, number O T font और dash F E A I F G spacing left race ठीक है, number font dash spacing left race blank ठीक है। line feed तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये जितने at भी CSS पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये पैराग्राफ के अंदर जितने भी लाइंस लिखे हुए हैं, अगर मैं चाहूँ कि इनके बीच का जो लाइन स्पेसिंग है ना, हर एक लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग है, अगर मैं उनको इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो फॉर circle style दैट आई कैन यूज द प्रॉपर्टी दैट इज नेम L I suggest list dash style colon line dash height property docs colon determines the लाइन block डैश हाइट, suggest list normal value docs colon tell user 80% unit docs 0 cap unit 0 ch unit docs 0 centimeters unit 0 cqb unit 0 cqh unit 0 chi unit docs colon level 0 max unit 0 min unit 0 cqw unit 0 dvb unit docs colon यहाँ पे अलग अलग यूनिट सारे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.5 list circle style sheet css dash lecture pt level 1 1.5 pt unit docs style sheet यहाँ css पे editor 1.5 पीटी यहाँ पे रख right दिया, race line dash height colon 1.5 pt semi ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि लाइक एमएस वर्ड में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, line feed L I suggest list line dash height list dash style property line dash height property docs colon determines the block backslash dash progression dimension of the text content area of an inline box back style sheet css L Lee selected line feed selected error line feed unselected अब I इंटरेस्टिंग right race एक और चीज right है, race blank अगर मुझे वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग अगर स्पेसिफाई करनी है तो आई कैन डू दैट आल्सो, सो double R D suggest list word dash break property word dash spacing property dot word dash wrap property docs word dash spacing property suggest list normal value docs 0% 0 0 ch 0 centimeters 0 cqb unit docs colon left लेट से मैं इसको रखता हूँ, इनके बीच की स्पेसिंग लेट से मैं रखता हूँ 3 पिक्सल, 3 px level 1 3 px unit docs style sheet right race word dash spacing colon 3 px semi line feed और चलिए और क्या है, और वर्ड रैप सिखा देता हूँ आपको, O R suggest D word dash spacing proper word dash break property word dash wrap property dash ms dash word dash wrap property docs colon specifies whether the UA may break within a word to prevent overflow when an otherwise backslash dash unbreakable string is too long to fit backslash syntax colon normal bar break backslash dash word level 1
हाँ, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। Dash M word dash wrap property docs colon specifies whether the UA may break within a word to prevent overflow and an otherwise backslash. I suggest list break dash word value docs normal value docs colon break dash word value normal value count left parent right if left parent inherit value initial value unset value docs var left parent right break dash word value docs colon an otherwise unbreakable sequence of characters may be broken at an arbitrary point if there are no otherwise backslash dash acceptable breakpoints in the line backslash level 1. ठीक है, तो इससे क्या होता है, Style sheet अगर CSS मैं editor इसको कर दूं तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई वर्ड लिखा, लेट से मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, ठीक है, लिखा 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 लिखा, अब लेफ्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं। अब अगर लेफ्ट टू राइट लिखते 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 अगर राइट साइड में स्पेसिंग नहीं बची और अगला जो हम वर्ड इंसर्ट करने वाले हैं, अगर उसमें अगर वो उसके बाद प्रीवियस वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड अगर सेम लाइन में फिट नहीं हो सकता तो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, ये है। और ये डिफॉल्ट रहता है, इसको आप चेंज नहीं right कर brace सकते हो, ठीक है। तो ये तो बस मैंने दिखाने के लिए बता दिया, बट इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट। right बट word dash wrap इसके line feed बाद का जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटर, L E T T E R letter dash spacing property docs colon लेटर स्पेसिंग I suggest list normal value docs नॉर्मल, चलिए मैं इसका देता हूँ उसका 3 px दिया था, मैं इसका 1.5 px देता हूँ। 1.5 px level 1 1.5 style sheet right letter dash spacing colon 1.5 px semi तो इस तरीके से अब आई डोंट CSS to की स्टाइलिंग कैसी दिख रही होगी, बट CSS to ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो we आपको, are learning to ठीक है। अब देखिए, अगर style आप sheet लोग डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए कोई एआई वगैरह का हेल्प लेते हो, चैट जीपीटी की हेल्प लेते हो, नॉट अ बैड थिंग है ना, टूल्स हैं, आपको यूज करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करते हैं और आप नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट कॉपिंग अप विद द टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये एक चीज है। और अगेन विजुअल इम्प्रूव्ड्स के लिए स्टाइलिंग अगर सीएसएस के थ्रू, सॉरी एआई के थ्रू हो रही है तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। बट थिंग इज कि अगर एआई कुछ ला करके आपको दे भी रहा है कोड, तो हाउ यू विल वेरीफाई, हाउ विल यू वेरीफाई। तो बेसिकली फॉर दैट, इफ यू हैव सम अमाउंट ऑफ नॉलेज एट लीस्ट, कि आपको ये पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होता है, ठीक है, तो लेट द एआई डिजाइन द लेट एआई डिसाइड द डिजाइन ऑफ द यूआई, बट लाइक जो कोड है वो एटलीस्ट आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें थी, right race और आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में गाइज हम लोग सीखेंगे कि हम लिस्ट वगैरह को कैसे डिजाइन कर सकते हैं एंड ऑल सच थिंग्स, ठीक है। तो बड़ा मजा आने वाला है अगली वीडियोस में। तो चलिए, तब तक के लिए बने रहिए इस कोर्स के साथ। वील मीट अगेन। थैंक यू।